अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, वेरी नाइस. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग दैट यू आर बेसिकली गोइंग थ्रू विद द नोट्स, हैंडआउट्स जो आपको मटेरियल दिया है, और साथ साथ आप क्विज़ेस और असाइनमेंट्स को भी कर रही हैं, सॉल्व कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू जस्ट टेक विद द टास्क इन ए प्रॉपर वे. और उसका जो प्रॉपर वे यही है कि जी आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जैसे भी एक अपना डिज़ाइन करें और उसके बाद उसी प्रोसेस पे स्टिक टू दी ऑब्जेक्टिव. और जो भी आपको स्टडी, जो भी लेक्चर्स के अंदर हम जो टॉपिक्स हैं उसको स्टडी करते हैं, आप उसको लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करें. नाउ डियर स्टूडेंट्स, let's go through with the previous study topics and then we move on to the new topics now. Lastly we discussed about the off budget expenditure and how they should be and they we discovered about कि जनाब वो कौन से जो आपके off budgeting आपके expenditures हैं और one should consider it while basically they are basically dealing with the capital investment process. और decision making makers and information का हमने देखा कि जी information must be there, should be reached to every single decision makers. If not, then that is big issue for them. Now today we discuss about the incentives and the issues of the incentives as well, and then we discuss about the measuring and rewarding performance of the managers. Obviously this is very important. And then we try to see through कि जो residual income है या अपनी economic value addition है, ठीक है, how to calculate that in terms of a organization. और इसके अंदर वेरिएशन भी हम चेक करेंगे, इसका हम देखेंगे कि जनाब कैसे वो बेसिकली कैसे वो लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और आपके इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, उसमें कैसे रिफ्लेक्शन आता है आपकी ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस पे या उसकी अर्निंग्स पे. ठीक है. Now we start with discussing the incentives, which is basically the one of the agency problems in the capital budgeting, which is regarding about the reduced effort. Again, dear students, जो आपका एजेंसी प्रॉब्लम है, always remember कि ये जो एजेंसी theory है that has been developed over the years, जब keeping in mind the objectivity of the governance issue being raised up in the corporations, and under this reflection the agents and the principal, they got to tie up in a way where they can balance their both of their positions, and that must be aligned to the overall objective of the firm. और उसी सिलसिले में हमने देखा जो भी एक एजेंट जो हायर होता है और जो भी आप उसके रिफ्लेक्शन के अंदर आपके जो प्रिंसिपल है जो उसको हायर कर रहा है, यू नो, बोथ ऑफ देम दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी कैपेसिटी ऑफ ऑथराइजिंग और गिविंग द पावर और द शेयरिंग द पावर कितनी है, और उसी असना में यू कैन इजीली डू समथिंग अबाउट इट. इसी सिलसिले में क्योंकि आपकी जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है that basically being reflected in the earnings, right? और वो जो reflection है जो earnings के अंदर आ रही है, that is basically promising something on the counterpart of the managers. और managers की जो effort है, obviously that been somehow must be monitored accordingly with the set criteria set by the shareholders. So इस situation के अंदर you got to understand the whole mechanic of it. और इसमें हम देखेंगे कि जो reduced effort है, this is one of the problem in the capital budgeting process, जिसके अंदर आपको पता है कि जो भी managers है जो कि एक एजेंट है हायर्ड बाय द शेयर होल्डर, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जनाब उसने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस लेकर आना है, इट शुड पोजेस सम नेट प्रेजेंट वैल्यू इन इट. ठीक है. देन वी डिस्कस अबाउट द पर्क्स, ऑल द बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अटैच्ड विद योर जॉब्स अपार्ट फ्रॉम द जॉब. ठीक है. और वो क्या बेनिफिट्स ले सकता है मैनेजर अगर उसका पूरा नहीं हो रहा, वो उसके लिए obviously एक आप ये कह सकते हैं कि if he knows कि जी whatever he been doing so far in the during the month, ठीक है, और during that period he's still getting access to those perks, benefits and bonuses. फिर ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि then why he need to put extra effort on it. ठीक है. तो ये भी हम देखेंगे. empire building again concept, and then the entrenching investments हैं, avoiding risk and all that one by one. ठीक है. नाउ वी कंटिन्यू. जो एजेंसी प्रॉब्लम्स है कैपिटल बजटिंग के अंदर, जो इंसेंटिव्स को कैसे एड्रेस करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर जो इंसेंटिव्स दे आर द ड्राइविंग एंड मोटिवेशनल फोर्स फॉर द मैनेजर्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑन द टास्क. ठीक है. जो भी साइन किया जाता है, लेट्स से कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके बॉसेस ने या आपके द पर्सन हु हैज हायर्ड यू, गिव यू जॉब,
अगर वहाँ पे इंसेंटिव्स आपको अपने मुताबिक नहीं मिल रहे, यू नो देयर इज नो इंसेंटिव्स एट ऑल, सो यू कैन सी और यू कैन फील लाइक कि जनाब देयर इज़ नो मीन ऑफ वर्किंग हार्ड इन दैट एनवायरनमेंट। और इसी सिचुएशन में जो एम्पिरिकल एविडेंसेस है, जो मोटिवेशंस हैं, जो इंसेंटिव्स है, दैट बीन अनदर रिफ्लेक्शन के जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी ओवर द ईयर्स, जो कॉर्पोरेशंस दे हैव विटनेसेड के जो मैनेजर्स हैं उनकी जो एफर्ट की वजह से उसके रिफ्लेक्शन जो है उसकी अर्निंग्स के अंदर भी आई। और इसी में मैनेजर्स विल एक्ट इन द शेयर होल्डर इंटरेस्ट ओनली इफ दे हैव द राइट incentives. Good capital investment decisions therefore depend on how managers' performance is measured and rewarded. इसी बेसिस पे कि जनाब जो भी incentives हैं, जो भी एक promise by the principal जो कि शेयर होल्डर्स हैं, जो भी एक एफर्ट मैनेजर पुट कर रहा है, यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जनाब उनकी एक रिफ्लेक्शन के अंदर उनका एक जो रिजल्टेड आउटपुट है वो क्या आएगा कि अगर इफ़ द मैनेजर इज प्रॉपर्ली मोटिवेटेड और वो जो मोटिवेशन है उसको एड्रेस कर रहा है इंसेंटिव्स गिवन बाय द शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ बोनसेस एंड द you know extra benefits, so that will basically somehow assure कि जनाब जो मैनेजर है they can easily they can actively participate in the activities, operating activities of the firm, ठीक है, and the company. This is somehow they, क्योंकि जो भी इंसेंटिव्स होता है अगर आप हल्का फुल्का इंसेंटिव्स रखेंगे किसी की एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के अंदर तो ऑब्वियसली दैट पर्सन कैन deliver more than what actually he is capable of in certain situations. So this is basically somewhere जो कि ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी प्रोसेस है उसके अंदर वो डिमांडेड है, जिसके अंदर आईटी की होगी, जिसके अंदर आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट आपके प्लान्स बन रहे हैं, जिस डिफरेंट कंप्लेंट्स आ रही हैं और उसकी बेसिस पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो खास ग्रुप जिसको एक उनका इंसेंटिव ज़्यादा होगा जो कि उस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी प्रोसेस के अंदर लगे हुए हैं स्पेसिफिक कोई भी, एंड दैट बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द लीडरशिप, जो भी एक लीडर एक बिहेवियर है, जो भी कल्चरल कंपनी का जो एक कॉर्पोरेट कल्चर है, ठीक है, उसके परसेप्शन के अंदर उनका इंसेंटिव ज़्यादा होना है. दिस इज़ वाई दीज पीपल दे नो देयर इंपॉर्टेंस यू नो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द इंसेंटिव्स. सो इसी सिचुएशन में, इसी रिफ्लेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं कि जो इंसेंटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर एंड दैट इज़ वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स विच बेसिकली मेक दैम अवेलेबल फॉर एनी सिचुएशन टू जो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन उन पे आ रही होती है टू परफॉर्म बेटरली आउट ऑफ इट. एंड बट इट्स ईजी टू सी व्हाट वोंट वर्क, एंड ऑब्वियसली जो भी आपको इंसेंटिव्स हैं उसी बेसिस पे एक ये भी बात है कि जनाब अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो दैट कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड बाय द टॉप टियर और द शेयर होल्डर्स कि जी उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देयर मस्ट बी सम वर्क शुड बी डन देयर इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जी जो भी चीज़ें हैं वो अलाइन हो जाएं ऑब्जेक्टिव को अचीव. और हमें पता है जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ जस्ट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ प्रोसेस, लेकिन उस वेल्थ प्रोसेस के अंदर यू गॉट टू मेक श्योर कि जनाब जो शेयर होल्डर्स का जो ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर वो ये चाह रहे हैं कि जी उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, दे गॉट टू मेक श्योर कि जी जो मैनेजर्स हैं दे आर बेसिकली पुटिंग ऑप्टिमल एफर्ट और नॉट यू नो, या जस्ट दे आर जस्ट प्लेइंग विद देयर द leverage sort of a leverage delivered by the shareholders. Now the manager as the stockholders agent is instructed to find the investment in all positive NPV projects open to the firm. Now हमने ये एक डिस्कस की थी और इस डिस्कशन के अंदर व्हाट वी बेसिकली इवैल्यूएटेड कि जो भी मैनेजर्स है दे बीन इनकरेज्ड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया. और उसी सिचुएशन के अंदर जो शेयर होल्डर्स ने उनको जो टास्क दिया हुआ है जो मैनेजर्स को, द मैनेजर आर फुली अवेयर नाउ कि जनाब जब तक हम उस फर्म के अंदर कोई ना कोई उसके अंदर कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं लेकर आएंगे, जब तक कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर कि जो प्रॉमिस करें इसकी ग्रोथ फर्दर इन द लेटर इन द रिस्पेक्टिव ईयर्स, तो उससे दे कैन नॉट बेसिकली गेट नियरर टू द टारगेट. ठीक है, वो टारगेट जो कि शेयर होल्डर ने उनको दिया हुआ है. सो ऑब्वियसली व्हाट आर द हर्डल इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, अब ये डिस्कस आप करते हैं. ऑब्वियसली वही एजेंसी प्रॉब्लम है, थ्योरी है, जो कि हमने अभी स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब स्टार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि जो एजेंसी थ्योरी है हाउ दे बेसिकली सम हाउ अगर आपने ये श्योरिटी रखनी है, अगर आपने ये चेक एंड बैलेंस रखना है कि जो मैनेजर्स है दे शुड ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो किस रिफ्लेक्शन के अंदर वो बात कर रहे हैं, इन व्हाट पर्सपेक्टिव दे आर बेसिकली डिलीवरिंग देयर थॉट्स टू द मैनेजर्स. और जो मैनेजर्स है दे आर फुली अवेयर एज वेल
द फैक्ट ऑफ द मैटर कि जनाब उनको जब तक वो ऐड नहीं करेंगे वैल्यू टू द फर्म, दे कैन नॉट बेसिकली गेट नियर टू द टारगेट बीइंग इम्पोज्ड बाय द शेयर होल्डर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगेन क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी रेज होता है कि जनाब वो जो प्रोजेक्ट्स हैं आया के जो एनपीवी, जो पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको जो इनिशिएट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स दरकार होती है मैनेजर्स की साइड को और फाइनेंशियल मैनेजर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को. हम आइए वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं. द रिड्यूस्ड एफर्ट्स फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेस्टमेंट इन ट्रूली वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स इज ए हाई एफर्ट हाई प्रेशर एक्टिविटी. थिंक अबाउट, देखें हमने देखा कि मैनेजर एक ऐसा ऑब्वियसली एक ह्यूमन कैपिटल है, यू नो, हु गॉट द स्किल टू इवैल्यूएट ए वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट्स, राइट. और उसके बाद क्राइटेरिया हमने यहाँ तक अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया है, यहाँ तक माइंड अपना वी डिसाइडेड दैट कि जनाब जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो नेट कंट्रीब्यूशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी firm, consistent growth or in reality the very existence of that firm, ठीक है, it is very crucial. Now think about that person, you look around and you will see that person who is basically sitting in a very luxurious sort of a office, and he got everything to his access, and he's basically it's just like a dream job to you, you know, but actually that person being bombarded and it has a very severe pressure on his shoulder कि जी he got to deliver by sitting there in a so-called royal office. Now this is basically you got to understand कि जनाब उसकी जो obligation है, ठीक है, उसके जो काउंटर पार्ट पे जो शेयर होल्डर्स ने उसको दी हुई है, that is a tremendous pressure now. So in that tremendous pressure just think about कि जनाब इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए वो कैपेबिलिटी और वो कैपेसिटी और वो स्किल लेवल दरकार होता है हर ह्यूमन के लिए, यू नो. ऑब्वियसली इन द रियलिटी नोबडी or majority of the people, they basically struggle in those positions, you know. So there are only few who can basically just break the shackles and they can, you know, enter into that elite group, and which basically promises them later on the huge reward, ठीक है. लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर क्योंकि हर एक ने तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वाई द अदर दे बेसिकली couldn't able to achieve those targets, you know, in a limited time, जो भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है. दैट इज somehow कि जनाब थिंक अबाउट वो प्रेशर गेम है, सारा कुछ है, और उसके अंदर यू गॉट टू डिलीवर इट. वाई टू यू नो पुट दैट मच एफर्ट, और उस पेन को क्यों बंदा ले, तो नो यू वंस यू बेसिकली थिंक ऑफ दैट कि यार मैं एक्स्ट्रा क्यों लूँ, वट एवर द कंपनी इज डीलिंग विद दैट इज गुड, एटलीस्ट आई एम जस्ट एडिंग समथिंग टू द फॉर्म एंड दिस इज इट. वाई टू कीप ऑन मैक्सिमाइजिंग इट. ये ऐसे सवालात हैं जो कि किसी भी इंसान के आ सकते हैं, और दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल. शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, दे कैन इजीली फिगर आउट हु इज़ वर्किंग एंड हु इज़ नॉट. बट इन केस इफ समबडी इज़ वर्किंग एंड गिविंग सम सॉर्ट ऑफ ए signals back to the shareholders कि yes they are adding to the value to the firm, लेकिन अब यही देखना है कि वो मैग्नीट्यूड क्या है उसका, you know. You are simply working just add a little bit to the firm's value, or either you are basically on that track which basically giving you the huge benefit afterwards to the firm or the back to the shareholder. So in that capacity बहुत से जो लोग हैं, बहुत से managers हैं, why they basically underperform because they simply reduce their effort in terms of कि जी why to give extra take extra pain out of it, ठीक है. तो ये भी एक चीज़ है जो कि एजेंसी जो इंसेंटिव जो है, यू नो, यू गॉट टू मेक श्योर जो शेयर होल्डर दे गॉट टू अंडरस्टैंड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दैट इंसेंटिव कि भाई जब तक आप उसको इंसेंटिव नहीं देंगे इस तरह काम नहीं चलेगा. और उसी सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली उसी रिफ्लेक्शन के अंदर जो इस ऑब्जेक्टिव को जो अचीव नहीं कर पा रहे, उनका मेन जो क्लू है, जो मेन उसका एलिमेंट है, दिस इज बेसिकली कि जो रिड्यूस जो दे बेसिकली सिंपली रिड्यूस द एफर्ट, यू नो, आफ्टर दैट. नाउ व्हाट आर द पर्क्स नाउ? Our hypothetical financial manager gets no bonuses, only $1, whatever the income, X per month. Now, basically the perks are actually the extra benefits, extra related added sugar to your supper, you know, to your food. So that is basically something which is basically given to those managers who are in the situation where they have possess such skills, जिसके अंदर जैसे मैंने अभी बात की थी, हमने डिस्कस किया था, जो प्रॉब्लम क्रिएटिविटी एक
कैपेसिटी होल्डर्स हैं जो कि एक स्किल रखते हैं और सर्टन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, उनके लिए द कॉर्पोरेट दे जस्ट ओपन देयर हैंड्स, यू नो, दे गिव देम एवरीथिंग एंड स्टफ लाइक दैट. बट देयर इज अ पॉइंट टू रिमेंबर एंड थिंक कि जनाब उन मैनेजर्स को जब उनको पता है कि यार हमें तो मसलन ये बोनसेस और ये तो हमें जो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट्स हैं वो तो है ही हैं, ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, देन व्हाई टू वर्क, व्हाई टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट देन. सो इन दैट सिचुएशन दे सिंपली नो कि जी हम TAD ले लेंगे, हम कहीं ट्रैवल कर लेंगे, कहीं कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर लेंगे, कोई मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे, एंड देन वी कैन यू नो समहाउ take a leverage out of it. So this is basically what we got to decide. This is one of the problem hindrances as well कि जनाब we got to understand कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एजेंसी प्रॉब्लम यहाँ से इशू कैसे आते हैं कि obviously that person is not marking his track, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसको ऑब्जेक्टिव्स की तरफ अचीव करने में, टारगेट के क्लोज करने में मदद दे रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज सिंपली कि जी वी जस्ट कंसिडर और लेट इट बी दैट मैनेजर जो कि सिंपली एक सैलरी ले रहा है एंड देयर इज नो बोनसेस, उसकी क्या रिएक्शन होगी, यू नो. और इन दैट सिचुएशन एम्पायर बिल्डिंग अदर थिंग्स इक्वल, मैनेजर्स प्रेफर टू रन लार्ज बिजनेसेस रादर देन स्मॉल वंस. अगेन कि जनाब कोई भी मैनेजर है, कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो एम्प्लॉई है जो इज वर्किंग बेसिकली इज ए एजेंट टू द शेयर होल्डर, कैसे वो वर्कआउट करेगा. ऑब्वियसली एवरीबडी दे साइड कि जी नहीं, मैंने तो एक छोटे एक नेटवर्क के अंदर या यूनिट के अंदर तो काम नहीं करना, देयर इज नो एप्रिसिएशन व्हाटसएवर. एक आपकी सेल्फ रिकग्निशन, एक आपकी एप्रिसिएशन आप बंदा चाह रहा होता है, राइट. सो working in a big unit, in a big buildings, you know, in the empire, in the enterprises, that basically not only put extra bit of pressure on them, but also in fact जो कि small managers हैं, जो small units नहीं हैं, they simply take along a negative NPV even in order to make it a larger one. So this is one of the case, one of the issue which is basically encountered by those shareholders while they will judge and they see through कि यार ये managers जो हैं वो एक objective की तरफ क्यों नहीं जा रहे, why they are basically deviating from their respective targets. So this is one of the factor again. Now the entrenching investment, what is this basically? Suppose manager Q considers two expansion plans, ठीक है. One plan will require a manager with special skills that manager Q just happened to leave, and the other plan requires only a general purpose manager. Again think of कि जो आपकी entrenching आपकी जो एक तरह से जो facility है उसके अंदर let's say कि consider आप दो plans को consider करें. First one basically require a greater part of the scale, ठीक है, unique scale. Other is simply a administration job. Now guess which plan Q will favor. Again this is a big question imposed on it. Projects designed to require or reward the skill of the existing managers are called entrenching investments. Now again जहाँ पे ज़्यादा स्किल रिक्वायर होगी उस मैनेजर को पता है, उसको अपनी वर्थ का पता है, एंड दैट बेसिकली प्रॉमिसेस देम जो कंपनीज के पर्सपेक्शन से क्या होगी, पर्सपेक्टिव से कि दिस इज ए एंट्रेंचिंग इन्वेस्टमेंट फॉर देम, क्योंकि दे हैव टू रिवॉर्ड दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स लेवल. एंड दिस इज वाई जो आपका क्यू, लेट इट बी दैट क्यू इज यू, you know, and you being the manager and you want to work in any organization and what you basically believe in it and what you basically up to is just to develop that sort of a skill that will promote you further and give you a more benefits in terms of rewards, bonuses and pay raise in the pay scale, you know, raise in the pay scale and everything, you know. So this is basically what the agency principal and agent problem exists here in achieving the objective, which is basically wealth maximization. कि जो shareholder हैं, they got to understand to reward those people who got a better skilled as compared to that one who's just there for the administration job. So this is very important to recognize and acknowledge their part of the skill, which sometimes is quite crucial and overlooked by the top tier, right? Now avoiding the risk, if a financial manager receives only a fixed salary and cannot share in the upside of the risky projects, then safe projects are from the manager's point of view. Now any manager, you know, who's working in any department, in any division, he cannot afford to lose the job. First point is this, because losing a job means that he got to wrap up and he cannot able to meet all the cost expenditure, both the end of the, you know, cost and the revenue part of
daily expenditures of his life, he got to cater his family and the other matters, he got to resolve it. So the job is the only source which can which is basically actually facilitating him. Now obviously any manager who can see through that, who basically just avoid the risk, nobody going to take the risk. That risk basically, if something goes wrong, he is the person who is questionable, and everybody they start throwing different points against him. ठीक है, और इस सिचुएशन के अंदर ये एक सिंपल ह्यूमन फैक्ट है, in the corporate world as well, the manager, he basically think of just not to take a risky project which promises a greater rewards later on. What they basically do, they just avoid the risk. They simply don't take it. By not taking any risk, that basically assure them, give them the assurance that yes, they can survive more years, in a few more years as well. अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ है, in avoiding the risk, you got to understand the situation कि जी you got to train that manager, or that manager shouldn't avoiding that risk, because that risk been calculated. It has to be calculated. Risk which is not calculated is basically is a uncertainty. Because once you calculated your uncertainty, that becomes the actual loss. That becomes the actual risk factor. And once you calculated it, you got to take the risk, because you need to understand how to compensate it, and this is where the skills comes from. And every single manager or the project manager who is working in the plant or as a division level, you got to understand in taking the risk and the benefits hidden in it. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो व्यू पॉइंट यही है कि जनाब जो भी उसके लिए सेफ्टी के प्रोजेक्ट्स होंगे, and he makes him believable to others as well, to the shareholder, that this is the risky project for them, for himself. And this is where he basically cannot differentiate between the risky and the safer projects. So this is somehow is a dilemma on the part of the manager. But risky projects can have large positive benefits, like we discussed कि जी उसके पास heavy rewards हैं और उसके पास जो larger profits promised हैं later in the future. Now the incentive issues. Obviously incentives are good. We discuss about कि incentives होने चाहिए shareholders को, क्योंकि there is a agreement going on between the principal and the agent. In that situation, what actually basically one has to believe कि जनाब उस incentive को जो managers को मिलना चाहिए, जो principal जो managers को मिलना चाहिए principal से, जो कि shareholders हैं, ठीक है, they should be delivered accordingly to their skills and the class and the work pressure and all the factors that are going to matter later on in the performance of the firm, of the company. ठीक है. Now the issues are the issues are monitoring, reviewing the action of the managers and providing incentives to maximize shareholder value. Now again कि जनाब इसमें incentives के issue के अंदर अगर issue आ जाते हैं तो what is basically the first step is the monitoring. Now check and balance is very important. We all know in a corporation obviously there are different activities going on. आपकी operating activities है, आपकी financing activities है, ठीक है, आपकी cash flow statements बन रही है, the treasurer is dealing in one direction, the controller is doing in the other direction. There are audits, there has to be audits going on, क्योंकि वो जो audits हैं that must be properly monitored. They assure it कि if anything goes wrong, or if somebody come up with the negative reports, तो that can be addressed properly. ठीक है, so that situation में जो एक monitoring का task है that is rested on the principal, और इसी situation के अंदर जो उनकी रिव्यू रिपोर्ट है, उनकी जो डिफरेंट ACRs हैं, उनकी डिफरेंट अप्रेजल्स फॉर्म्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एनी मैनेजर कि जी उसकी कितनी अचीवमेंट्स है, कितनी वो फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आया और कितनी उसकी नेगेटिविटी है. सो वन ऑफ द ओपिनियन रिगार्डिंग इट कि जी इफ़ यू कीप योर लॉसेज विच इज़ हैवियर इन नंबर एट ए मिनिमम लेवल एंड कीप योर जो प्रॉफिट्स हैं, जो विनिंग है, शॉर्ट्स हैं, इफ दैट इज मोर, that is somehow not that much huge, but they are heavier as compared to losses, this is a win-win situation for the manager. So in that situation जो उसका काउंटर है, जो उसका कंप्रोमाइज है, जो कंपनसेट कर रहा है, जो एक आपको हैवियर जो प्रॉफिट ले रहा है, जो आपका जो मैनेजर है वो बेसिकली श्योर कर रहा है आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट से एज कम्पेयर टू योर लॉसेज, मिनिमम लॉसेज. और यही सिचुएशन जो मॉनिटरिंग की है दैट बेसिकली प्रॉमिस द सेम सिचुएशन. ठीक है,
It can confirm that manager is putting sufficient time on the job. Again आप देखते हैं कि जी डिफरेंट आवर्स ऑफ वर्किंग है, वन हैज़ टू वर्क एंड वन हैज़ टू, जो आपकी नॉर्मल वर्किंग टाइम है 9 to 5, एंड देयर आर फ्यू जॉब्स व्हिच इज़ basically somehow they've been forced to extend their hours as well, because as their job needed them to do it, or as the shareholders basically or their principal or the managers, they are putting sufficient job time उस लिहाज से कि जितना उसकी एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही. आप इस लिहाज से देखें कि जी कोई भी प्रोडक्शन प्लांट चल रहा है उसके अंदर आप देखते हैं कि मैनेजर्स ने एक अपना स्टैंडर्ड तो पूरा करना ही करना है टाइमिंग्स का, ठीक है. लेकिन व्हाट इफ कि जी अगर वो यूनिट से डिवीजन से आपको उतना रिस्पेक्टिव प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो ऑप्टिमम लेवल अचीव नहीं कर पा रहा, तो व्हाट यू बेसिकली डू, the shareholders or the any manager, he can just consider and revisit the working hours of the plant managers, or the plant manager will revisit the working hour of the workers, and they can set कि जी आप इसको extend करें क्योंकि you are not basically achieving the optimum level. So this is all about monitoring cost, time, efforts and money. Now think about जो आपकी monitoring है, that is good, fair enough कि जनाब monitoring that basically check and balance होता है. Now what is the issue hidden in it? Issue is this कि जी monitoring cost still a cost, and there is a time comes कि that cost has become a very critical for the shareholders to absorb it completely. That's still a extra dollar spending on them in terms of a monitoring, that is basically some cost. And under this reflection you got to understand कि जनाब वो जो cost है shareholder तो ये चाह रहे थे, you got to reduce it to the minimum. इस सिचुएशन के अंदर जो भी आपकी मॉनिटरिंग कॉस्ट है स्टिल ए कॉस्ट, एंड अगेन दैट इज नॉट दी ओनली सोल अश्योरेंस कि जी आपका मैनेजर जो है वो काम कर रहा है प्रॉपर कि नहीं, क्योंकि दैट इज इवन दो ही इज वर्किंग, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है दैट बेसिकली इज प्रॉमिसिंग इन रिडक्शन इन द एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. So this is basically the important point to consider. Now who actually does the monitoring in the public firms, in the public companies? Yes, they are the board of directors, which is the elected body, and the board from the shareholders, all the stakeholders are there. Again, जो आपके कंपनीज के मेमोरेंडम में है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, लेट सपोज इफ द कॉमन स्टॉक होल्डर they are monitoring it, this is a job of the common stakeholder. If the company is not performing good, if the managers they are not basically competing up with the whatever the objectives, the preferred shareholder they took over the company, and again obviously the common stakeholders की सही नहीं रहेगी. This is basically somehow in the governance part of the issue, and in this perspective जो board of directors है, which is the elected board, they make sure कि जनाब और working proper चल रही हो कंपनी के अंदर, corporations के अंदर, and they force the manager to do in the righteous way. Now the board also hires independent accountants as well. Now monitoring की हम बात कर रहे हैं, इसमें why not कि जो independent accountants आ जाए. Independent accountants they've been specifically asked from the shareholders या board of directors कि जनाब आप चेक एंड बैलेंस रखें, इंटरनल ऑडिट का जो सिस्टम शुरू करें आप, ठीक है. आप चेक करें कि ट्रेजरर जो है वो आया कि कैश को पूरी तरह मैनेज कर रहा है कि नहीं कर पा रहा. जो भी हमने एक कैपिटल बजट बनाया है उसके अंदर जो फाइनेंशियल डिसीजन करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसके पास आपने जाना है, ट्रेजरर के पास. ट्रेजरर से कैश आपने लेना है कि उसकी जो मैनेजमेंट चल रही है, आया कि वो उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, उसकी एक्टिविटीज क्या शोर कर रही है. सो फॉर दैट रीजन द कंट्रोल इज देयर, who basically audit that on a continuous basis. So apart from that, if they show कि जी monitoring चाहिए, they basically hire the independent accountants as well. अब उस accountant के लिए और वो जो auditors हैं जो कि independent accountants हैं to audit the firm's financial statements हैं, उसी के again जो अगर वो qualified report opinion अपना they are a different unqualified opinion and the qualified opinion. If something goes wrong, that is they basically come up with the qualified opinion. अब ये दिस इज वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी वी यूज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर जो ऑडिटर रिपोर्ट है उसकी डिफरेंट काइंड्स है. अब स्टेटमेंट्स आई हैं, एक ऑडिट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, एंड दे बेसिकली लुक अराउंड द थिंग्स एंड दे सेड कि जी नथिंग इज सस्पिशियस गोइंग ऑन, एंड व्हाट दे बेसिकली कम अप विद द अनक्वालिफाइड ओपिनियन. बट इफ द सस्पिशन इज देयर, देन द अनक्वालिफाइड ओपिनियन मे बी अ बैड न्यूज, एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन. एंड दिस इज हाउ द बोर्ड दे कम टू नो कि जी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर है आया कि ही इज बेसिकली निगलेक्टिंग हिज पार्ट ऑफ द ड्यूटीज, और प्रॉब्ली द वे एक्चुअली द प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम एग्जिस्ट.
in the company. So again, these are basically counts, obviously this is one of the factor. जब आप एक bad news लेकर आएंगे और उसी के मुताबिक जो accounting जो आपकी problems चल रही हैं उसी के basis पे जो deduct करेंगे auditors, they are held to pay. अब यही जो ऑडिटर, इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर है, जब वो उसने देखा कि जी कहाँ पे प्रॉब्लम है, आया कि मैनेजर है, तो दे हैव टू पे बैक एंड आंसरेबल टू दी बिग टॉप टियर. तो इसी सिचुएशन के अंदर दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि वेयर दे पुट एक्स्ट्रा बिट ऑफ कैश और इन्वेस्टमेंट टू एंड जस्ट मेक श्योर कि जो मैनेजर्स हैं या डिफरेंट जो डिविजनल्स हैं, जो कि आपके प्लांट मैनेजर्स भी हो गए या डिविजनल मैनेजर, दे वर्किंग इन ए प्रॉपर वे. नाउ लेंडर्स आल्सो मॉनिटर. आप देखें जो कि लेंडिंग आपकी बॉडीज हैं, ठीक है, आपके जो क्रेडिटर्स हैं, दे ओनली पे यू इफ यू आर इन ए गुड शेप. This is very important to consider as well. If you are not in a good shape, then they won't pay you. उसी सिचुएशन के अंदर if you come again and ask for the money and your history shows a different giving them a wrong signals कि you are not basically that person who promises and once promises just deliver as required. तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? Obviously you are not being honored accordingly. उस बेसिस पे you not being welcomed by those lenders and the creditors. So again that is again one of the monitoring by the lenders. और इसी में different credit agencies भी हैं जो वर्कआउट कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं credit rating agencies, ठीक है. और इसी सिचुएशन के अंदर जब आप देखेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे कि जनाब आपकी जो पैक्रा भी है इज वर्किंग ऑन दी दैट कंपनी बेसिकली इज देयर टू रेट दी डिफरेंट कॉर्पोरेशंस. सो इस सिचुएशन के अंदर दे कैन बी वेरी हैंडी इन टर्म्स ऑफ ए मॉनिटरिंग पार्ट. नाउ द फ्री राइडर्स, हु आर द फ्री राइडर्स? जनाब इसको आमतौर पे अगर हम इस तरह एक्सप्लेन करें कि जनाब दैट पर्सन हु जस्ट ले बैक एंड एंजॉय द रेस्ट और टू वर्क एंड जस्ट टू सी द रेस्ट वर्क, क्योंकि that person is basically neglecting from his part of the obligation and he letting others to work on his behalf. और इसी सिचुएशन के अंदर कि it's just like एक आम तौर पे हम एक फ्रेज सुनते आते हैं जैसे कि जी just pass the buck, you are basically passing the buck at your part when the buck is at yourself. आपके पास obligation आई तो you just pass it on to the next person next to you, to the person next to you. और इसी सिचुएशन के अंदर this is not a healthy path, these are the free riders. क्योंकि अगर जब भी उसका कोई कंपनी एक अच्छा रिवॉर्ड लेकर आएगी, एक अच्छा डिलीवरेबल एक अच्छा डिलीवर करेगी, सो दैट पर्सन हैज पुट नथिंग इन द एफर्ट ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, इज जस्ट एज ए फ्री राइडर. और वो इंजॉय करेगा अपनी फ्री राइडर जो एक सिचुएशन का. सो फ्री राइडर इज बेसिकली डेलीगेटेड. मॉनिटरिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन ओनरशिप इज वाइडली डिस्पर्स्ड. जब आपका डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है नहीं है, जब आपका सेंट्रलाइज प्रोसेस है, सेंटर्ड है, लेकिन नोबडी इज मॉनिटरिंग इट, आपका डिस्पर्स है ओनरशिप, सो दिस इज वेयर दी मॉनिटरिंग इज वेरी स्पेशली नीडेड. और जो भी आपके डोमिनेंट शेयर होल्डर्स हैं, ही और शी विल जनरली कीप ए क्लोज आई ऑन द टॉप मैनेजर्स. बट व्हेन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज लार्ज एंड ईच स्टॉक होल्डिंग इज स्मॉल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन नॉट जस्टिफाई मच टाइम एंड एक्सपेंस फॉर मॉनिटरिंग. And in that situation, each is tempted to leave these tasks to others, taking a free rider on the other efforts. But if everybody prefers to let somebody else do it, then it won't get done. That is, monitoring by shareholder will not be strong or effective. और यही हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ रिफ्लेक्शन लेकर आ रहा है. वो हाईलाइट कर रहा है इस चीज़ को कि जनाब आपकी जो भी सिचुएशन है जिधर आपने एक एफर्ट पुट करनी है, एंड उस एफर्ट के बाद यू गॉट टू प्रॉमिस इट कि जनाब इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है, जो ओवरऑल प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया है, इसके अंदर मेरा भी कोई ना कोई एक एफर्ट है. लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसे शेयर होल्डर है जो कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लेकिन उसका मिनिमम शेयर है उसके अंदर, सो नोबडी बेसिकली गिव अ डैम अबाउट इट. उसकी वजह ये है कि जनाब एवरीबडी देयर स्टार्ट लुकिंग टू प्रोटेक्ट देयर पार्ट ऑफ द स्मॉल प्रोपोर्शन इन द कॉर्पोरेशन. सो नोबडी इज बेसिकली फेवरिंग दैट मॉनिटरिंग पॉलिसी कि जी ये इट शुड बी देयर. सो इन दैट सिचुएशन कि एवरीबडी इज जस्ट लुकिंग आफ्टरवर्ड्स, लुकिंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड सेइंग कि जी अच्छा आप काम करें मेरे बेहाफ पे ना, और मेक श्योर कि जो मैनेजर्स हैं वो आपको एक प्रॉमिस रिजल्ट दें. सो दिस इज बेसिकली द सिचुएशन विच इज ए प्रॉब्लम फॉर द शेयर होल्डर एज वेल. Now, the compensation, because monitoring is necessarily imperfect, compensation plans must be designed to give managers the right incentives. Again, compensation is very important.
इंसेंटिव्स इशू के अंदर जो आपका कंपनसेशन है, दैट बिलीव्स टू बी वन ऑफ द इशू which is basically the must be handled with care. क्यों? लेट्स से जी डिपार्टमेंट के अंदर आप देखते हैं, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, या आपका डिफरेंट मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, इज वर्किंग इन एनीवेयर, तो उसके अंदर क्या होता है कि जी ही मस्ट नो कि जी हु इज़ पुटिंग हाउ मच ऑफ एफर्ट, और अकॉर्डिंगली उसको कंपनसेट करना है. अब यही जो रिपोर्ट है उसके अंदर अगर वो फेवर करता है या उसके अंदर फेवर नहीं करता या वो ओवरलुक कर जाता है, दिस इज़ द बिगर प्रॉब्लम दे आर डीलिंग विद. तो अगर आप कंपनसेट नहीं करेंगे किसी भी दूसरे को जो एक एफर्ट पुट कर रहा है, दैट बेसिकली इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी, होल कॉर्पोरेशन. So that person not going to put his effort in accordingly then. और इस सिचुएशन में compensation can be based on input or on output, which is basically return or value added as a result of the manager decision. Input क्या है इसकी? That is basically manager's effort or demonstrated willingness to bear risk. This is basically the main input of it. और output क्या है कि जो भी एक value addition NPV, positive NPV manager लेकर आ रहा है. So again you got to understand कि जी इसी के अंदर जो compensation है वो आप कैसे टाई अप करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम यही है कि यार मैं इसको कंपनसेट कैसे करूं, या कोई भी किसी बंदे को मैंने जो डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं तो हर एक बंदे को मैं कैसे रिवॉर्ड करूं, ठीक है, हाउ दैट पर्सन शुड बी रिवॉर्डेड, दिस इज द बिगर क्वेश्चन. लेकिन कैसे कि जनाब उसकी इनपुट और आउटपुट आपने देखनी है. इनपुट वो कितना कर रहा है और कितना क्रूशल टास्क था, कितना चैलेंजिंग टास्क था, और उसके जो रिजल्टेड है उसका इफेक्ट जो है उसका जो एज ए रिजल्ट आया कि कंपनी को कितना बेनिफिट दिया. तो अकॉर्डिंगली यू गॉट टू गिव हिम दैट परसेंटेज ऑफ शेयर इन टर्म्स ऑफ ए कंपनसेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स के अंदर है आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ऑनरेरियम मिल जाता है, आपको एफर्ट से आपको सर्टन एक सीजन में कोई आपका टास्क और वर्क आपको दिया जाता है. एक मैनेजर है, प्लांट मैनेजर, उसको कोई सीजनल एफर्ट के तौर पे कोई वर्किंग दी जाती है. उस सिचुएशन में क्या होता है कि जनाब आपको फिर कंपनसेशन दे दी जाती है, आपको कंपनसेटेड कर दिया जाता है अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसी की बिना पे आपने उस एफर्ट लगाई हुई है उसकी. तो ऑनरेरियम दिया जाता है या आपको एक पे एक्स्ट्रा पे दे दी जाती है इन टर्म्स ऑफ ए सैलरी. सो दिस इज बेसिकली द कंपनसेशन इज ऑल अबाउट. Fortunes of the business never depend only on the efforts of a few key individuals. Again, हमें ये भी पता है कि जी जो ह्यूमन कैपिटल उसकी वर्थ है, लेकिन तमाम जो एम्पायर है, पूरी इंटरप्राइज का है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि एक बंदे की वजह से चल रही है. दैट इज ए कलेक्टिव एफर्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन ऑन दैट फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री एरिया और फ्लोर ऑफ दैट कॉर्पोरेशन बिल्डिंग. सो कैसे कि हर कोई जो है वो जनाब जेल्ड अप होना चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए कि जनाब मेरी ही जितनी भी मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ, जितनी भी मैं कॉस्ट एफिशिएंसी से लेकर चल रहा हूँ चीज़ें, दैट सम हाउ इज एक्यूमुलेटिंग इन दी ओवरऑल अर्निंग ऑफ द कॉर्पोरेशन. सो थिंक ऑफ व्हाट this would mean in case of General Electric, where in the recession income can fall by more than 1 billion. A recession is not their fault. Again think of recession में जब वो जनाब उनकी रेज जो इनका रेवेन्यू है वो गिरा, तो can you be that person who can invest again in the G at that time of fall? No, not even those managers or the people who are basically a part of the General Electric. This is what we are basically discussing here. कि जनाब आपने you got to understand कि जनाब जो कंपनीज का जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ देखें वो लोगों का तो फैक्टर्स है ही हैं, दैट इज बेसिकली दे आर गिविंग देयर बेस्ट, बट देयर आर सम अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट, मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, जो कि एक आपकी फर्म्स की या के एक ह्यूमन के हाथ में नहीं होता. ठीक है, दे आर नॉट बेसिकली सम हाउ एड्रेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स. They are the market forces, they are the market conditions going on. Recession आ गया, this is not their fault. And again, you know, they've been, again, अब उस fault की वजह से क्योंकि रेज नीचे हुआ, profit और revenue नीचे गिरा, तो can, this is the only measure where we can reward accordingly. उनको compensation फिर इसके मुताबिक देंगे, अब गिरी है तो no compensation given to them. No, this is not the case basically. Accordingly, हर बंदे को उसके मुताबिक और situation के मुताबिक देना चाहिए. So this is one of the issue again, and tying top management compensation to stock price raises another difficult issue again. हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट की कंपनसेशन है वो स्टॉक प्राइस जैसे जा रही होती है उसकी कंपनसेशन भी ऐसे जा रही होती है.
stock price जहाँ पे गिरी, they've been neglected straight away, even though that person he somehow make the share price steady in the recession period. So this is a big task that person top manager have achieved. लेकिन simple क्या है जनाब, क्योंकि आपने एक शेयर होल्डर है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे मेक श्योर कि जी हमने कंपनसेशन प्लान कैसे डेवलप करना है, बट दे हार्डली अंडरस्टैंड द मेन सिंगल पॉइंट कि जनाब यू गॉट टू अंडरस्टैंड वट एवर द चैलेंजेस, यू गॉट टू अकॉर्डिंगली कंपनसेट दैट पर्सन. इट्स नॉट सिंपली बिकॉज कि जी शेयर प्राइस जो है वो नीचे हुई है, और बाकियों कंपेयर करें ना बाकियों की इंडस्ट्री के अंदर कि जी वो इससे भी ज़्यादा नीचे गिरी है. सो इन दैट सिचुएशन यू गॉट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. So, a compensation scheme linked to the stock return would fail to recognize the manager's special contribution. This is very important and you got to understand it. Now, the measuring and rewarding performance. Almost all top executives of the firm with publicly traded shares have compensation packages that depend in part on their firm's stock price performance. For lower level managers, compensation packages usually depend more on accounting measures and less on the stock returns. Again, ये एक understanding है जो rewarding की है. हमने देखा जो आपके close publicly held जो आपके फंड्स हैं, जो पब्लिकली लिमिटेड कंपनीज है, राइट, उनके जो टॉप टियर है, दे आर बेसिकली रिलेटेड विद द स्टॉक प्राइस मूवमेंट. जो भी उनके कंपनसेशन प्लान्स हैं, जो कि हमने देखा कि दिस इज वन ऑफ द इशू यू गॉट टू अंडरस्टैंड एज वेल. एंड व्हाट अबाउट द मिडिल मैनेजर्स और द वर्किंग क्लास, उनका जो एक रिवार्डिंग प्लान है या कंपनसेशन प्लान है, हाउ दे आर बेसिकली रिलेटेड विद व्हाट, यू नो. सो वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग आपके मेजर्स हैं या बुक वैल्यूज़ के साथ हैं, विच इज़ बेसिकली नॉट ए हेल्दियर रिफ्लेक्शन ऑफ ए हेल्दियर पॉलिसी एट ऑल. ठीक है, और इसके अंदर ऑब्वियसली ये हम देखते आ रहे हैं, ये दीज आर वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपने कीप इन योर माइंड. नाउ सम ऑब्वियस प्रॉब्लम्स क्या हैं जी. फर्स्ट, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर पार्शली विद इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर हुज पे डिपेंड ऑन द नियर टर्म अर्निंग में कट मेंटेनेंस और द स्टॉक ट्रेनिंग. अगेन द मिडिल मैनेजर्स हैं, जब उनको पता है कि यार हमारा जो अकाउंटिंग मेजर्स है या बुक वैल्यू है उससे रिलेटेड है, वो क्या करेगा, ही ट्राई टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट या एक्सपेंसेस अपने जितने वो कम से कम लेकर आएगा उसका फायदा. और वो कैसे करेगा, ही ट्राई टू फाइंड आउट द वेज, और उसी वेज के अंदर हाउ बेसिकली ही डिलीवर इट, ही ट्राई टू स्नैप समबडीज इनकम या रिवॉर्ड, और जस्ट टू मेक श्योर कि जनाब देखिए जी मैंने तो प्रॉफिट काफ़ी दी है, एंड if my that is basically related to my compensation, as this is increasing, so as my compensation would be. So second, accounting earnings and the rates of return can be severely biased measures of true profitability, and this is the factor we were discussing कि जी इनके अंदर you got to be very cautious, और यही जो है आपकी एजेंसी और आपके प्रॉब्लम लेकर क्रिएट करते, ये इंसेंटिव इश्यूज हैं that we got to study it. Now, third, growth in the earning does not necessarily mean that shareholders are better off. Any investment with positive rate of return, 1 or 2% will eventually increase earning. Now, think about, एक जनाब मैनेजर है और उनको पता चल गया कि यार मेरा जो है सिंपली यही है कि अगर मैं कोई भी एडिशन लेकर आऊंगा, ठीक है, तो दैट बेसिकली कंफर्म माई रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन. हाउ अबाउट इफ दैट पर्सन ब्रिंग अबाउट 1% 2% नेट प्रेजेंट वैल्यू, कोई भी प्रोजेक्ट लेता है, लेकिन आपने ये भी तो देखना है उसकी आया कि उसका जो इम्पैक्ट होगा उस 1% और 2% का कंपेयरिंग टू 15% और 13% वो कितना होना है. बट ही क्लेम दैट कि जी देखें जी आई कम अप विद द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मच. So this is again a bigger question mark against the performance of the manager कि जनाब एक मैनेजर है, he claimed, दो मैनेजर्स हैं, both of they claim कि जनाब मैंने एफर्ट पुट की है जिसके अंदर दोनों कहते हैं कि हमने पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, we added something to the value of the firm, लेकिन दोनों को ही कंपनसेट एक ही तरीके से किया जाता है. लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जनाब एक मैनेजर है, ही बेसिकली सिंपली सेड कि जी मैं एक जो एनपीवी लेकर आया हूं विच इज हायर एज कम्पेयर टू हिज, सो व्हाई नॉट आई बीन कंपनसेटेड मोर. सो इन दैट सिचुएशन इवेंचुअली दिस इज वन ऑफ द फैक्ट, एंड दिस इज 1 and 2%, दैट इज बेसिकली नॉट ए वैल्यू एडेड एडिशन, दैट इज एक्चुअली द डिस्ट्रॉइंग वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज लिमिटाइजिंग इट, क्योंकि देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स, ये अदर भी कुछ ऐसे इंसेंटिव्स है विच बेसिकली ब्रिंग मोर फ्रूट टू दी बैक टू दी फर्म. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट मैनेजर्स शुड डू now after discussing all the points, manager ought not to forget the cost of capital.
हमेशा याद रखें कि जो आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो किसी भी कॉर्पोरेशंस के अंदर जब भी वो एक प्रोसेस के अंदर हैं जो कि उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, आप हमेशा ये याद रखें कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं भूलना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी वही जो कैपिटल आपने लिया हुआ है उसकी कॉस्ट है जो बियर कर रही है कंपनी। अब अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिजेक्ट कर देता है और ये सिंपली कम अप विद ए डिफरेंट रेवेन्यू रेट ऑफ रिटर्न जो कि उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट। तो जो आपका रेट ऑफ रिटर्न का एक रूल ऑफ लॉ है वो फिर उसके बाद चैलेंज हो जाता है स्ट्रेट अवे। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। इन जजिंग देयर परफॉर्मेंस द फोकस शुड बी ऑन द वैल्यू एडेड एंड दैट इज ऑन द रिटर्न ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। सो नंबर 1, if that manager he come up with the rate of return which must be greater than opportunity cost of capital, rule number 1. This is what we call it the rule of the rate of return. And obviously if that is the case then the NPVs must be positive, and it has to be positive, and it is positive then. So both of the ends meet, and that basically determines and promises the actual addition to the value, not destroying that value. Now we simply look at the table and we try to figure out कि जनाब वो जो आपके डिफरेंट जो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देखते हैं और देखते हैं कि जनाब ये कंपनी है कॉइल सिटी कन्फेबुलेटर प्लांट, उसने जो लगाया हुआ है उसका देख लेते हैं। नाउ इधर देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको सेल्स है, हम इसको एलैबोरेट कर देते हैं कि जनाब सेल्स आपको गिवन है, ठीक है, सीजीएस है, उसमें से आपके जो भी एक जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंडिचर्स आपके कट हुए और उसके बाद आपका टैक्सेस कटा, नेट इनकम आपने $130 इन मिलियंस आपने कमाई है। नाउ लुक एट द एसेट्स, दिस इज द एसेट डेप्रिसिएशन कटी और उसके बाद जो भी आपका अदर एसेट्स है यू एड अप एंड द टोटल एसेट इज $100,000। नाउ सिंपली जो भी आपकी सबडक्शन प्लांट है उसकी जो एक आपकी एसेट वैल्यू और जो आपकी इनकम जो प्रोड्यूस है वो हमने फाइंड आउट की। 2 मेथड्स, ऑलवेज रिमेंबर वट एवर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट द प्लांट, जो भी आपके स्टैटिस्टिक हैं दे आर ओनली 2 मेथड टू कंसिडर, ऑलवेज टू कंसिडर। नंबर 1, नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज बेसिकली दिस इज, डज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये आपने देखना है कि जनाब जो भी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट हैज एक्सेस ओवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नॉट, यानी कि जो भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो भी कॉर्पोरेशन की कंपनी की है उसको प्रॉपर्ली वो कंपनसेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सो इन दैट सिचुएशन द नेट रिटर्न टू द इन्वेस्टर मेथड कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। अगेन जो नेट रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट है मेथड कैलकुलेट्स डिफरेंस बिटवीन देम एंड लेट्स सी द कैलकुलेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। कैसे? लेट्स सपोज जनाब कि ये आपका 130 जो नेट इनकम था जो हमने फाइंड किया कि जनाब उस कंपनी का जो नेट इनकम हमने फाइंड किया था, अगर यहाँ पे मैं लिख भी दूं दैट इज $130 मिलियन, ठीक है जी, जो कि ये आपको शो हो रहा है, और उसकी बेसिस पे कि जो आपकी एसेट वैल्यू थी टोटल जो एसेट्स हमने फाइंड की वो दैट इज $100,000 इन मिलियन। सो बेसिकली दैट शोज अगेन कि जनाब उसकी जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है यू नो दैट इज 0.13। नाउ गिवन अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% है, व्हाट वुड बी दी नेट ROI, दैट वुड बी 3%। अगेन द विन-विन सिचुएशन इज देयर। सो कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी हमने इनकम फाइंड की, इनकम के बाद उसकी टोटल एसेट देखी और आपने देखा कि यार एसेट जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी नेट इनकम पे, व्हाट द एक्चुअल रिटर्न द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर दे आर गेटिंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली द स्टैट्स आर क्लियर ऑन दैट बेसिस। अगर आपका कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जो आपका कोयल सिटी जो आपकी कंपनी है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% है, इफ यू टेक द डिफरेंस तो सिंपली द स्टैट्स आपके पास जो आएंगे दैट इज 3%, विच इज अ गुड पार्ट। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज से 10% देन इट्स अ हेल्थियर पार्ट। व्हाट अबाउट इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ जाता है, लेट्स से 20%, अभी तो आपका ये है कि जनाब 3% आपने प्रॉफिट ले लिया। व्हाट अबाउट कि जनाब लेट्स से कि जनाब आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, आप कहते हैं जिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका 10% नहीं होता, वो इंक्रीज कर जाता है, लेट इट बी 20%। सो ऑब्वियसली दैट गिव्स यू द नेगेटिव केस, so this is not the healthier at all। so obviously the cost of capital obviously किसी भी प्रोजेक्ट का वो उसका certain specific to that project है, लेकिन obviously in this situation जहाँ पे हमने ये स्टडी किया कि जनाब if the cost of capital say 20% as compared to 10% previously,
जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1 बिलियन समवेयर एल्स करेंगे आप, क्योंकि वो जो 1 बिलियन आपने, क्योंकि 1000 मिलियन इज ए 1 बिलियन, वो $1 बिलियन जो है कहीं और लगा लें आप, क्योंकि ये आपको नुकसान दे रहा है। सो दिस इज ए सिंपल कंपैरिजन ऑफ इट कि जनाब आपके पास पहला मेथड क्या है, ऑलवेज रिमेंबर ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना उस पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उनको कितना मिलेगा उसके ऊपर। इफ दैट इज अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गो एंड गेट इट, ठीक है। Dear students, let's find out the residual income and the economic value added. Residual income or EVA is equal to net dollar return after deducting the cost of capital. Now, EVA is basically the residual income, ठीक है, and that income basically earned minus income required. Now, income earned minus cost of capital into investment, that is basically the income required, और cost of capital हमें पता है that is basically the hurdle rate, ठीक है जी, और इन्वेस्टमेंट वट एवर द प्रोजेक्ट दे गोइंग टू इन्वेस्ट इन, ठीक है, जैसे अभी हमने प्रीवियसली देखा कोयल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी में। नाउ रेजिडुअल इनकम, द सेकंड मेथड कैलकुलेट्स ए नेट डॉलर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो कि एक नेट डॉलर रिटर्न है। इट आस्क्स व्हाट आर द अर्निंग्स आफ्टर डिडक्टिंग ए चार्ज फॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कोई भी आपकी अर्निंग्स के जब आप उसको जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपने मल्टीप्लाई किया, तो वट एवर द अर्निंग्स रेस्टेड आफ्टर यू डिडक्टेड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टू जज द नेट कंट्रीब्यूशन टू वैल्यू वी नीड टू डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू द प्लांट बाय द पेरेंट कंपनी एंड इट्स स्टॉक होल्डर्स। अगेन ये भी जो एक्सप्लेनेशन है सिंपली उसी फार्मूले की तरफ लेकर जा रहा है आइडिया, जिसके अंदर हमने यहाँ पे देखा प्रीवियसली कि जनाब जो भी आपके रेजिडुअल इनकम है दैट अशोर दी EVA जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, लेकिन ये जो रेजिडुअल इनकम है आपकी, ये इनकम अर्न माइनस इनकम रिक्वायर्ड, और इनकम रिक्वायर्ड इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी एक कॉस्ट इसमें से डिडक्शन के बाद शेयर होल्डर के पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल सपोज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जनाब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% जो है, ठीक है, दैट इज बेसिकली द हर्डल रेट। देन द डॉलर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द प्लांट इज कोई भी आपका, ठीक है, क्योंकि दिस इज बेसिकली द एक्चुअल इज 1। जो कैपिटल क्या है, कैपिटल इज बेसिकली, क्योंकि हमने देखा कि एसेट दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ equity and debt, and that is basically the capital we are talking about, and that is actually is equal to the asset. Now 1000 से मल्टीप्लाई किया 120 मिलियन, the net gain is therefore हम देखेंगे 130 जो भी एक नेट इनकम थी माइनस 120 बेसिकली 10 मिलियन। अगेन इसको हम दोबारा देखते हैं कि जनाब आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, दैट इज बेसिकली 12% हर्डल रेट है, लेट्स सपोज इट। Now if you're going to multiply with that, okay, this is a part of your investment, when you're going to multiply it with your cost of capital, that gives you 120 million. Now remember आपकी जो इनकम थी, इनकम earned वो कितनी थी, $130, उसमें से माइनस जो भी आपने कॉस्ट की जिसको आप कहते हैं जो इनकम इन्वेस्टेड, तो उसमें से जो माइनस की तो that is basically $120 million, and that gives you $10 million. ठीक है, this is the addition to the shareholder wealth due to the management's hard work or good luck. So this is basically जो आपकी EVA है, आप ये कह सकते हैं that basically separates the skill from luck. ठीक है, कि जो भी एक स्किलफुल मैनेजर है जो वर्किंग जो है उसने अपनी एफर्ट पुट की है, यू कैन इजीली फाइंड आउट एंड डिस्कवर द कंपनसेशन एंड हाउ यू गोइंग टू डू इट बाय डिस्कवरिंग कि जी उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, ठीक है, वो क्या है। नाउ द रेजिडुअल इनकम एंड द EVA बेसिकली अगर कॉस्ट ऑफ आपने देखा कि हमने प्रीवियसली जो फाइंड किया था, दैट इज बेसिकली वट एवर द रेजिडुअल इनकम इज, ठीक है, और दैट रेजिडुअल इनकम बेसिकली इज वट एवर जो कास्ट इसमें से निकालेंगे क्योंकि रेजिडुअल इनकम बेसिकली माइनस जो आपकी इनकम अर्न और जो इनकम कॉस्ट है, ठीक है, 10 मिलियन का पॉजिटिव दे रहा है। बट इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर 20%, EVA वुड बी नेगेटिव बाय 70 मिलियन। अगेन हम ये अज्यूम करते हैं कि जनाब आप EVA फाइंड आउट करें और बताइए कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है। रिमेंबर
हमने जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हम फाइंड किया था दैट इज 30% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब था 10%। तो क्या सिचुएशन थी? विन विन सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आप कह लें कि जो नेट ROI था दैट इज बेसिकली 13% माइनस 10% गिव्स यू 3%। ठीक है जी। लेकिन जब ये बढ़ गया और ये 20% हमने अज्यूम किया तो यही जो था ये -7% पे आ गया, विच इज़ नॉट गुड। अगेन यहीं पे भी आपको यही अज्यूम किया जा रहा है कि EVA लेट इट बी कि जनाब आपका भी जो कितना है +$10 मिलियन है। ठीक है जी। नाउ एट द रेट ऑफ 10%। अगर ये 20% हो जाता है तो उस पर क्या होगा? ऑब्वियसली 20% की वजह से जब भी आप 20% मल्टीप्लाई बाय जो भी 1000 है दैट गोइंग टू एक्सेस इन इट, और जो आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी दैट इज 70 मिलियन, विच इज नॉट ए गुड एट ऑल। व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेट रिटर्न एंड EVA आर बोथ 0 बट द नेट रिटर्न इज द परसेंटेज एंड इग्नोर द स्केल ऑफ द इकोनॉमी। और यही वो बात कर रहा है कि जो नेट रिटर्न है दैट बेसिकली इज परसेंटेज एंड इग्नोर्स द स्केल ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि वो परसेंटेज के अंदर गिवन है। लेकिन जब रेट ऑफ रिटर्न ऑन जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है जब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इक्वल हो जाए तो EVA आपका 0 हो जाता है। लेट इट बी, अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हेन गेट इक्वल्स टू वट एवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल that making the EVA is equal to 0. So that means there is no economic value addition in investing in that certain project. So this is very important to understand. And how you going to define the economic profit? Other consulting firms have their own version of residual income. ठीक है। और इसी सिचुएशन में जो आपका McKinsey एंड कंपनी यूजेस इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड डिफाइन एज कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय द स्प्रेड बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल इनकम। और उसी पे जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है दैट बेसिकली डिटरमिन्स व्हाट, कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है दैट इक्वल्स द कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय द स्प्रेड बिटवीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगेन इसको अगर आपने एलैबोरेट करना है यू कैन इजीली डू इट कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस जो भी आपका R है जो स्प्रेड है मल्टीप्लाई बाय कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी आपने कैपिटल इसको इन्वेस्ट किया है। ठीक है। एंड दैट सिचुएशन आपका अगर लेट से जो रिटर्न है हमने देखा कि जो अपॉर्चुनिटी जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है लेट से वो 12% है। सो यू माइनस इट एंड यू सिंपली मल्टीप्लाई विद दैट जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो भी आपके EVA के ही इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू 10 मिलियन। सो दिस इज अनदर वे टू कैलकुलेट दैट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, message of EVA is the managers are motivated to only invest in projects that earn more than the cost. EVA makes cost of capital visible to the managers. Again, जो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है वो क्यों इंसेंटिव देती है मैनेजर्स को? क्योंकि उनको पता है कि जनाब उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है दैट बेसिकली एडिंग टू द एक्चुअल वैल्यू टू द फर्म, एंड उसी के रिफ्लेक्शन में उनको ये आइडिया हो जाता है कि उनकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। ठीक है। एंड लीड्स टू ए रिडक्शन इन एसेट एम्प्लॉयड। ऑब्वियसली दैट इज वन अनदर कि जनाब उसकी जो एसेट्स है जो एम्प्लॉय आपने किए हुए हैं, ठीक है, उसकी दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज जब आप फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस करते हैं और किसी भी एनालिसिस करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हाईलाइट्स के थ्रू, तो उस एनालिसिस के अंदर ऑब्वियसली जो कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल वैल्यू जो कि उसके अगेंस्ट आपको पता चलता है दैट कंपनी इज़ एफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग इट। जो एक अर्निंग्स है वो उसकी जो एसेट्स है वो आया कि पूरी तरह अच्छी तरह ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। EVA डज नॉट मेजर प्रेजेंट वैल्यू, अगेन वन ऑफ द इंसिडेंट, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंटिंग वैल्यू नहीं है। एंड द रिवॉर्ड्स क्विक पे बैक्स एंड नोज टाइम वैल्यू मनी, अगेन दैट इज अनदर इशू विद द EVA। नाउ इन शॉर्ट, economic value added and other measure of residual income depends on accurate measure of the economic income and investment। जो भी आपकी economic income है जो हमने डिस्कस की और जो investment है वो accurate होने चाहिए, उसी के अगेंस्ट वो अच्छी एक आपको possibility दे रहा है, क्योंकि हमने देखा कि अगर return on investment है when that equals to your cost of capital, that ensures कि आपकी there is no addition to the economic value to your firm. So EVA is basically equal to 0. Now, applying EVA effectively require major changes in income statements and balance sheets. Obviously, that demands
something which basically in terms of value are depending on the EVA. Now the summary of it, dear students, let's discuss with the topics we discussed so far, summarize it. We discuss about कि जनाब जो ये आपके incentives हैं और जो issues related हैं उसके साथ ही कि how they basically correlate with each other and how they basically affect the overall decision making process, जो कि आपकी capital investment decision के साथ है. एंड ऑब्वियसली इसी रिफ्लेक्शन के अंदर वन इम्पॉर्टेंट स्टफ हमने देखा कि जनाब जो इंसेंटिव्स हैं, जो कंपनसेशन हैं, जो पर्क्स हैं, जो बोनसेस हैं, जो पे ऑफ्स हैं, यू नो, इन सारों को जो एक आम परसेप्शन है टॉप टीयर मैनेजमेंट उसको कैसे वो टैली करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट की जो एफर्ट्स है उसको कैसे आप कंपनसेट कर रहे होते हैं विद द बुक वैल्यूज़ के साथ. तो ऑब्वियसली एजेंसी इश्यूज भी इसी के साथ है. फिर हमने देखा मेजरिंग एंड रिवार्डिंग परफॉर्मेंसेस जो है ऑब्वियसली उसके इंडिकेटर्स हैं जो हमने देखा कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर जो कि आपको ये कंसिडर बता रहा था कि जो भी इन्वेस्टर रिटर्न है, ठीक है, उस पर वो इन्वेस्टमेंट का जो मैनेजर्स के परसेप्शन से कि मैनेजर को पता चल रहा था कि यार जितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसमें मुझे रिटर्न कितना मिलना है. और अगर वो रेट ऑफ रिटर्न जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आप यू सिंपली से दैट कि हाँ ये ज़्यादा फ़ायदा है मुझे. लेकिन अगेन जब हम देखते हैं कि जनाब आपकी जो भी इकोनॉमिक इनकम है, यू नो, जब हम इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, जो भी इकोनॉमिक इनकम है, जब हम देखते हैं कि अगर हम उस क्राइटेरिया से जाएं तो जो आपकी रेजिडुअल इनकम है, जो आपकी इनकम अर्नड है और उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी इसकी कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन आ जाती है. जो और ये जो एक आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है दैट अश्योर वर्ड कि बेसिकली कि जब ये ज़ीरो होगी तो दैट मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम होंगे. सो देयर इज़ नो एडिशन टू इट. और इसी भी परसेप्शन से जो इसके कुछ पिटफॉल्स हमने डिस्कस किए थे और इसमें हमने ये देखा कि जनाब इस मेजरमेंट के लिए, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन से कर रही हैं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कर रही हैं, यू गॉट टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कि जो इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट के हैं आपके फिगर्स हैं, ठीक है, वो एक्यूरेट होने चाहिए. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को. एंड आई होप सो यू विल स्टडी इट एंड यू विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस सो फार. It's goodbye from my side.